ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے جون کی 12 اور ذی الحجہ کے 15 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے ایگزیکٹو کونسلر برائے پی ایچ ای کاچو محمد فیروز نے گورنمنٹ مڈل اسکول کرت کے محمد عبداللہ، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پشکم کے لیکچرر خادم حسین اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ٹرسپون کے لیکچرر محبوب علی کو ریاستی استاد ایوارڈ 2024 حاصل کرنے پر خراج تحسین پیش کیا. تقریب کونسل سیکریٹریٹ میں منعقد ہوئی، جہاں کاچو محمد فیروز نے اساتذہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اساتذہ معاشرے کی بنیاد ہیں اور ان کی خاموش محنت نسلوں کو سنوارتی ہے. انہوں نے اساتذہ کو یقین دلایا کہ LHDC کرگل تعلیم کے شعبے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچوک ٹاشی اور کونسلر غلام حیدر نے بھی اساتذہ کو مبارکباد دی اور تعلیم میں ان کے کردار کو سراہا. آخر میں ایوارڈ یافتہ اساتذہ کو اسناد پیش کی گئی. گورنمنٹ مڈل اسکول تھوینا میں کمپاؤنڈ والنگ نہ ہونے کے سبب اسکول کے املاک کو نقصان پہنچانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. والدین نے وائس آف لداخ سے فون پر بات کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا کہ اسکول میں صبح شام کے اوقات میں باہر کے بچے داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. والدین کا کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے پر کئی بار علاقے کے کونسلر اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند سے رابطہ کر چکے ہیں اور اسکول کے لیے فوری کمپاؤنڈ والنگ کی تعمیر کی درخواست کی ہے، مگر تاحال کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسکول غریب خاندانوں کے بچوں کے لیے تعلیم کا واحد ذریعہ ہے، جبکہ معاشی طور پر مستحکم خاندان اپنے بچوں کو نجی یا دیگر مہنگے اسکولوں میں بھیجتے ہیں. اس بنیاد پر سرکاری اسکول میں زیر تعلیم بچوں کا تحفظ اور سازگار تعلیمی ماحول فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. ایک اور اہم نقطہ جو والدین نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ اسکول دریا کے کنارے واقع ہے، جو کہ بچوں کی سلامتی کے لیے اضافی خطرات کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے چار دیواری کی تعمیر مزید ضروری ہو جاتی ہے. تھوینا کے مکینوں نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ہل کونسل اور محکمہ تعلیم سے اپیل کی ہے کہ وہ اسکول کی چار دیواری کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں تاکہ اسکول کے املاک کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے اور بچوں کو ایک محفوظ تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے. اگر ngachi gyo mang yo sab se ngacha sukul pula kampalawar chi che ngachi sukul pu chuki chan la yo ter jam chhe zur la ngachi phun la khatara jab tak ngachi gyo la kampalwari pu khul son se met ngachi phun na sukul ki safe met बेशक जरूरी ओरिएंटल सूदी का यो ngacha gar sapazere ngachi da kampalwar pu malhaben Campalwar pehla just pina divas pehla पहली बार ngacha sang paso se zere yo se indika sisi yo se ngacha dika kyo se sisi ngacha cha ngachi de ni mabas ngacha sisi ngacha mabas phun la akhiri ka ngacha gelam ban che khatara yo te ngacha sisi ngacha zespin ek man chi zespin magar sisi ngacha dan asukul puldan chuze de sukul puldan dan la ngachi phun su chue che khatara sung chunche bak bak de chunche phru ngama darbira sonzo de sukul uncha se sukul enuk laptop tan sisi ngacha si de saman gama kher bi khatara sung ngacha let gama ya let na phute kher bi den na sung go sum chak
sedo ngacha tabahari kasnya tanuga ngati shuni kasnya tanugare ngacha chang patamet na ngachi du chibrasi met is namala ngacha yuda sabse kampalwar chi sonse ger chi chukcha chana ngachi sukul pe suhuliyat dushaya kampalwar semet kama ngachi sukul pe sep chachamet इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से ज़िले करगिल में अक़ीदत व एहतराम के साथ जश्न महफ़िल का इनेक़ाद किया गया। सबसे बड़ी तक़रीब इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल और जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल के ज़ेर एहतिमाम बिलतरतीब जामे मस्जिद करगिल और इस्लामिया स्कूल के अहाते में नमाज ज़ुहरैन के बाद मुनक़िद हुई, जिनमें मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उलमाए किराम ने इन महाफिल में इमाम हादी अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत, इल्मी मुकाम और इनके किरदार पर तफसील से रोशनी डाली। मुकर्रिन ने इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अस्र हाजिर के लिए नमूना करार देते हुए मोमिनीन को इनकी तालीमात पर अमल पेरा होने की तलकीन की। इस मौके पर जामे मस्जिद करगिल में इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के तहत ईद ज़ुहा से ईद गदीर तक जारी हफ्ते विलायत के सिलसिले में पहले से प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन के रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर रमेश कुमार केत की सदारत करगिल में यूथ एक्शन कमेटी के मेंबरान के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हुकूक, रिजर्वेशन बचाओ एजेंडा, मुल्क भर में बढ़ती निजीकारी मुलाजमतों के खात्मे और ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के मुतालिबात पर तफसील से गुफ्तगू हुई। डॉक्टर केत ने नौजवानों को 15 जून 2025 को दिल्ली में होने वाले कौमी कन्वेंशन में शिरकत की दावत दी, जिसकी सदारत डॉक्टर आदित्य राज करेंगे। इस कन्वेंशन का मकसद समाजी इंसाफ, रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़, वक्फ बोर्ड की हिफाजत और EVM हटाने जैसे मसाइल को उजागर करना है। करगिल के नौजवानों ने खुसूसी तौर पर लद्दाख के शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन और रोज़गार के मुतबादिल ज़राए की कमी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतालिबा किया कि लद्दाख जैसे पसमानदा इलाके में रहने वालों को रोज़गार और माश के ज़राए फराहम किए जाएँ। डॉक्टर रमेश केत ने यूथ एक्शन कमेटी के तमाम मुतालिबात को तवज्जो से सुना और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आखिर में यूथ एक्शन कमेटी के तर्जुमान मोहम्मद सलीम खान और रुकन मोहम्मद अली ने डॉक्टर केत का शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर अम्बेडकर के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए कन्फेडरेशन की कोशिशों को सराहा। ज़िले करगिल में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ मौसर इक़दाम के तौर पर डिस्ट्रिक्ट ड्रग्स एडिक्शन सेंटर करगिल ने इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल, जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल और महकमे तालीम करगिल के इश्तिराक से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्मो और गवर्नमेंट हाई स्कूल ललुंग में एक अहम आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया। प्रोग्राम के आगाज़ पर दोनों स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने मेहमान मुकर्रीन और तलबा को खुश आमदीद कहा और अपने इस्तक़बालिया खिताब में माशरे में मनशियात की तबाहकारियों पर रोशनी डालते हुए उसे एक संगीन समाजी मसला करार दिया, जो इस्लाम के खिलाफ आगाही फैलाने में अपना किरदार अदा करे। इफ्तिताही तकरीर में DDSC के मैनेजर ने ज़िले में मनशियात के बढ़ते हुए ख़तरात और इसके नुकसानात पर रोशनी डाली। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि DDSC सेंटर पर मुफ्त इलाज और मशावरत की सहूलियत दस्तयाब है और नौजवानों को मनशियात से दूर रहने की तरगीब दी है। आगा सईद रज़ा रिज़वी नुमाइंदा इस्लामी स्कूल ने तलबा से खिताब करते हुए मनशियात के असबाब और ख़तरात पर बामानी गुफ्तगू की। उन्होंने तलबा को अपनी समाजी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए कहा कि इस ख़तरे के ख़ात्मे के लिए सबको मिलकर कोशिशें करना होगी। शेख बशीर शाकिर नुमाइंदा इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल ने अपने खिताब में नज़्म व ज़ब्त और अखलाकी अक़दार की अहमियत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि मनशियात का इस्तेमाल न सिर्फ फ़र्द बल्कि पूरे माशरे की तबाही का बाइस ज़िंदगी में मुस्बत और अखलाकी उसूलों को अपनाएं। प्रोग्राम के अख्तिताम पर स्कूल के प्रिंसिपल्स ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए इस तरह की आगाही सरगर्मियों को वक़्त की अहम ज़रूरत करार दिया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि नौजवान नस्ल इस पैगाम को संजीदगी से लेकर सेहतमंद और बावक़ार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। अब पेश है कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें।
एयर इंडिया का एक तैयारा जिसमें 242 मुसाफिर सवार थे गुजरात के अहमद आबाद में गिरकर तबाह हो गया है। की तस्दीक कर दी है। रियासती पुलिस कोर्ट से धुआं उठता हुआ देखा जा रहा है। फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए वकूफ पर रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मसरूफ हैं। जख्मियों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तैयारे में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी भी सवार थे। गुजरात के अहमदाबाद के मोगानी नगर में एक रहायशी इलाके में यह हादसा पेश आया है। यह हादसा तैयारे के टेक ऑफ के दौरान पेश आया है। जाए हादसा पर राहत और बचाव का काम जारी है। इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक हादसा तैयारे के इंजन में तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। दूसरी जानिब वाक़े से अफरा तफरी मच गई है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि इस हादसे में कितने लोग जख्मी हुए हैं और कितने लोग हलाक हुए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के वजीर आला, वजीर दाखिला और पुलिस कमिश्नर से तैयारे हादसे के बारे में बात की है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से मदद फराहम करने का भी यकीन दिलाया है। गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने अपने ताज़ा तरीन एदाद शुमार में बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा पट्टी पर सियोनी हुकूमत के हमलों में मज़ीद 123 अफराद शहीद और 474 ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को सियोनी हमलों के आगाज़ से अब तक 55,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। बयान में कहा गया है कि अब तक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अब इमदाद के कोशां फ़लस्तीनियों में शहीद 224 और 1858 ज़ख्मी हो चुके हैं। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।